Hello students, today we are moving for chapter 5, file handling, which is the next chapter in your book. Chapter 4 was using Python libraries, which we have completed. Chapter 5, file handling, we will start today. Files, you use files regularly, the traditional files which you use to make notes or keep the data records. But in computer, files are binary files, text files, CSV files, and you also use PDF, Word. There are so many type of files which you use in your daily routine. But when you use Python, you have to read three types of file which Python can read or interpret: text file, binary file, and CSV file. CSV files were not part of your syllabus in the previous year in 12th class, but now it has been added, and some functions of binary files have also been added. I had also sent a PDF regarding this, which changes are there in the previous year's syllabus and this year's syllabus. So please go through this and you will know what you have to read extra or what you have to read less. So moving to next part. See, this is the snapshot from your syllabus. This is file handling after functions. Functions was the first topic. Then the second topic in your syllabus is file handling of unit 1. So file handling, need for a data file and types of file: text file, binary file, and CSV file. Okay. Then टेक्स्ट फाइल, बाइनरी एंड CSV, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज. दिस वी हैव कंप्लीटेड. सो टेक्स्ट, बाइनरी एंड CSV, these 3 points and above point file handling, this is also part of your chapter 5. So these 4 points we will read in the chapter 5. Text file, basic operations on text file: open, close, reading, manipulation of data, appending data, standard input, output, and error streams, relative and absolute paths. Same binary file, basic operation: open, close, pickle module, math, load and dump, read, write, create, search, append, and update operation. Then same CSV, import CSV and function: open, close, read from file, and write into a CSV file using csv.reader and csv.write row. So we will talk about text file first. Chapter 3 यहाँ पे लिखा हुआ है because I have taken this from a notes. So there was this chapter name was chapter 3, but we will talk about file handling. So what is a file? A file is a collection of related data stored in a particular area on the disk. So when you save anything on the PC, it automatically saves in a disk, and some sort of data you store in that file. So whatever you store, text file, word file, all these are files. Stream, it refers to a sequence of bytes. It means if you write your name, then it will be a sequence of bytes for computer, because you also know computer understands only binary language. Okay, it doesn't understand your whatever you characters you use. It converts them into binary, then the computer understands. File handling is an important part of any web application. Okay, so data files can be stored in 2 ways: text file and binary file. CSV files are not in these notes, but when I will take CSV, I will take separately that part, because these are old notes and they have not included CSV files in these notes. Text files are structured as a sequence of lines where each line includes sequence of characters. So टेक्स्ट फाइल आपको पता है .txt आप जब सेव करते हैं, देन यू राइट सम माय नेम इज दिस और एटसेट्रा वॉट एवर information is stored, then it is called a text file. And binary file is any type of file that is not a text file. Text file is the normal file which you can read, but binary file only computers can read. So the difference we will see.
text file, binary file. Text file stores in ASCII characters. ASCII characters आपको पता है, ASCII characters, binary characters. ASCII characters की questions भी share किए थे मैंने. ASCII characters are whatever you write, A, B, C, D, these all are ASCII characters. Store information in the same format which the information is held in memory. Each line of text is terminated with a special character known as EUL. It is called a delimiter, actually, delimiter. But in binary files, no delimiter are used for a line. It means these are written continuously. So computers read continuously without a delimiter. Some internal translations take place when this EUL character is read or written. ठीक है, underline means समझते हैं आप क्या, जैसे this is a line. So it is ending here. So there will be a special character which we call the delimiter, और EOL means end of line. It is nothing, बस इतना सा इसका concept है. And in binary files, no translation occurs in binary files. You know, binary files are directly read by computers. Text files are slower than binary files. Binary files are faster and easier for a program to read and write the text file. So binary files are faster and easier than a text file. So these are some common differences. See, this is somewhat a different league of topic which is not easy to understand. You just have to think like a programmer to understand text and binary files. Text files are simple written files which you can read, and binary files which you cannot read, only computer can read. So don't delve into the topic deep कि ये क्या होता है कैसे नहीं. टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. जैसे आप डॉक फाइल होती है आपकी, या टेक्स्ट फाइल होती है, या PDF होती है, ऐसे ही आपको बस इतना ही समझना है. सो यू जस्ट हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड the different methods you will use in your programs while opening and closing these files or accessing these files. So we will come to opening and closing a file. Opening a file. To work with a file, first of all you have to open the file. तो open करने के लिए you use open function. Open function takes 2 parameters. फाइल का नाम होगा, then mode. File name आपको पता है, open, when you open a file then you surely you have to give the name of the file. But what is mode? See here, open function returns a file object. It is written file here. See here, file object and open. अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. To open a file for reading, it is enough to specify the name of the file. See here. अब देखो आपको कैसे किया है. To specify the name of the file. Name of the file is book.txt. So you will write open and then in bracket book.txt. It means file name. The code above is the same as RT. R means read mode and T for text. These are the default values. You do not need to specify them. RT is the mode. फाइल मोड बोलते हैं इसको. यहाँ पे आप बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं. So you will see later how many modes you can use here. So here basically R means read mode, W means write mode, where read mode means you just can read the data from the file. You can't write into the file from your program. And T means text file. So easy. आप टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं और रीड मोड में यूज़ कर रहे हैं, एंड फाइल का नाम ये है. एंड F इक्वल टू आपको कोई फाइल का ऑब्जेक्ट है. फाइल आप F लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम ऑफ योर फाइल. नाउ क्लोजिंग द फाइल. आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन फाइल हैज़ टू बी क्लोज्ड. फॉर दिस अ क्लोज फंक्शन इज. तो बहुत ईजी है. टेक्स्ट फाइल के बारे में बात कर रहे हैं हम. एंड देन देयर आर 2 फंक्शंस, ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन. Open function when we will start our program and when we will start reading from a file or writing from a file. But first we are talking about reading from a file. So just open the file with read mode, and when you would have been completed all the tasks in a file, then you will use the close function. File object name dot close. See the file modes there. Very important. R means read, W means write, A means append. Okay. B, अभी
टेक्स्ट फाइल में अगर आपको लिखना है तो सिंपल RWA ये सब लिख के चल सकता है, बट इफ़ यू वांट टू यूज इन द सेम इन बाइनरी फाइल देन RB WB AB. सो रीड समझ में आपको opens a file for reading. Error if the file does not exist. ठीक है. Write opens a file for writing. It means if I want to write my name in the file, so I can write my name into file using the write mode. It creates the file if does not exist. अब इसमें क्या होता है, यदि फाइल आपकी नहीं है and you are still want to read from the file, then क्या होगा, आपको एरर देगा. बट इन W मीन्स राइट मोड में अगर आपकी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आपको राइट करना है तो आपको नई फाइल बना के देगा. एंड A मीन्स अपेंड. आप जानते हैं अपेंड मतलब क्या होता है, आपको लास्ट में कोई भी डेटा ऐड करना है. फाइल में अगर 50 लाइन है एंड देन आफ्टर 50th लाइन यू वांट टू ऐड समथिंग देन यू हैव टू राइट. ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट्स द फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट. R प्लस W प्लस A प्लस X प्लस, और बाइनरी ये करना है तो सेम यही चीज़ है, बट आपको B लगाना पड़ेगा फॉर बाइनरी. R प्लस मीन्स रीड एंड राइट. आप दोनों काम कर सकते हैं, बट फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड. W प्लस में रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं, बट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड. A प्लस रीड एंड राइट अपेंड न्यू डेटा. ठीक है, और ये भी आपको फाइल क्रिएट करके देगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो. X क्या होता है, it creates the specified file, returns an error if the file exists. Whatever you are writing, if you are writing a name of a file, then if it already exists, it will give you the error. Okay, थोड़ा ही अलग सा फंक्शन है, so it will give you error. In addition, you can specify if the file should be handled as binary or text mode. यानी कि देखिए सारी चीज़ सेम ही है, ओपन करने का सब all things are same, but just you have to write if it is text file or if it is binary file. So you can write T for text and binary for binary file. Example images. अब हम शुरू करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल, स्पेशली टेक्स्ट फाइल फंक्शंस. व्हाट आर टेक्स्ट फाइल फंक्शंस? बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, आपके कोर्स में देखा आपने सिलेबस में. बेसिक ऑपरेशंस फॉर अ टेक्स्ट फाइल तो क्या क्या हो सकते हैं, रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, डिलीट करना. ठीक है, अब रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल कैसे करेंगे. लेट अ टेक्स्ट फाइल book.txt. अब आपको एक फाइल आपने बनाई है book.txt. दिस यू हैव सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड यू हैव रिटन दिस टेक्स्ट इन इट. सो प्रोग्राम यूजिंग रीड फंक्शन. ठीक है, तो आपको रीड करना है तो यू हैव टू यूज रीड फंक्शन. इजी है, कैसे करेंगे देखिए. fin इक्वल टू ओपन डी पाइथन प्रोग्रेस book.txt r fin डॉट रीड प्रिंट str fin डॉट क्लोज. इसमें क्या है, सिंपल है. देखिए ये फाइल का पाथ है, ये आपका मोड है, ओपन फंक्शन यूज किया है, fin फाइल के किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है. इट मीन्स फाइल जो खुलेगी हमारे पीसी में यानी कि हमारे प्रोग्राम में उसका नाम fin होगा. देन यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल, तो यू हैव टू यूज fin डॉट रीड फंक्शन एंड यू हैव टू कलेक्ट बाइट बाय बाइट फ्रॉम द फाइल एंड यू हैव टू सेव इट इन str एनी स्ट्रिंग. इफ यू प्रिंट द str क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग आप प्रिंट करा रहे हैं तो आपको पूरा डेटा ये जो आपने यहाँ पे देखा था ना वो पूरा का पूरा आपको रीड होके प्रिंट हो जाएगा एंड आपकी फाइल क्लोज करने के लिए fin डॉट क्लोज आपको यूज करना है. देखिए बोथ आर सेम बट जस्ट यू हैव रिटन 10 हेयर. 10 का मतलब क्या हुआ, अब नाउ इट विल गिव यू ओनली द 10 बाइट्स फ्रॉम योर डेटा फ्रॉम योर टेक्स्ट फाइल. ये क्या करेगा, आपको पूरा देगा, बट 10 अगर आपने लिख दिया, कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया बाइट्स, ठीक है करेगा. इसमें से सिर्फ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक स्पेस. यहाँ पे देखो स्पेस है ना, इसलिए आपको 10 बाइट्स यहाँ पे दिए और यहाँ पे आपको पूरा डेटा देगा. समझ में आया. अब यहाँ पे देखिए रीड लाइन फंक्शन. रीड लाइन फंक्शन वो फंक्शन कहता है रीड मतलब एक बाइट करके रीड करना है. रीड लाइन फंक्शन मीन आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है. सो सेम थिंग, आपने फाइल का पाथ दिया, पाथ मतलब फाइल मेरी कहाँ सेव है, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ये आपकी फाइल सेव है और रीड बोर्ड में आपको ओपन करना है. आपको टी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज टी इज द डिफॉल्ट मोड, टेक्स्ट फाइल इज द डिफॉल्ट मोड. सेम fin डॉट रीड लाइन, आप देखोगे सेम, देखो ऊपर नीचे सी fin डॉट रीड एंड fin डॉट रीड लाइन, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों प्रोग्राम्स में. ठीक है,
तो इसमें क्या था, बाइट बाय बाइट करते हैं, एक एक बाइट वो आपको रीड करके देता है और यहाँ पे पूरी लाइन रीड करके देगा, ठीक है, इजी है। देन इट इज क्लोज, fi_क्लोज, तो सेम है। अब आपने रीड लाइन किया मतलब आपको एक लाइन देगा। पाइथन इज इंटरेक्टिव लैंग्वेज, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे सी पाइथन इज इंटरेक्ट, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे है एक EOL मीन्स एंड ऑफ लाइन। अब ये क्या समझेगा कि यहाँ पे ये एंड ऑफ लाइन हो चुकी है, देन रीड लाइन फंक्शन आपको एक सिंगल लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर में देगा। अब यहाँ पे देखो सेम यही चीज रीड लाइंस पे आप करोगे। रीड लाइंस क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको सारी लाइंस देगा रीड लाइंस। तो ये आपकी लाइन आई, देन \n, ये क्या है आपका, ये है आपका EOL कैरेक्टर, ठीक है, या फिर डिलिमिटर जिसको आप बोल रहे थे, डिलिमिटर। इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर \n, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइन चेंज हो रही है ना, यहाँ पे देखो \n आया, फिर यहाँ पे आएगा, तो जहाँ पे भी आपकी ये खत्म हो गया पूरा पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपको, अब देखिए आपने ब्रैकेट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ब्रैकेट है लिस्ट के ब्रैकेट है। इट मीन्स रीड लाइंस फंक्शन गिव यू द आंसर इन द लिस्ट फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या बता रहा है कि ये आपको लिस्ट के फॉर्म में आंसर देगा। देखो थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, लेकिन आप जब नोट्स बना लेंगे अपने इसमें से देख के और एक बार फिर से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करके बताती हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट इज फाइल, सिंपल फाइल के बारे में बात करी। फाइल आपको टेक्स्ट, बाइनरी, CSV, 3 तरह की फाइल्स आपको पढ़नी है सिलेबस में। टेक्स्ट बाइनरी मैंने आपको बताया, बाइनरी फाइल 0-1 के फॉर्मेट में जो होती है, या जो टेक्स्ट फाइल आप पढ़ नहीं सकते, दैट ऑल आर बाइनरी फाइल्स पर ओनली कंप्यूटर्स कैन रीड। और टेक्स्ट फाइल जो भी आप सेव करते हैं वो सब टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। अब उस टेक्स्ट फाइल के लिए या कोई फाइल के लिए आपने ओपन और क्लोज फंक्शन पढ़े, सिंपल ओपन और क्लोज यूज कैसे करते हैं, देन फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, देन आपने मोड्स के बारे में पढ़ा, रीड, राइट और अपेंड कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर देन आपने पढ़ा रीड फंक्शन क्या करता है, रीड लाइन क्या करता है, एंड रीड लाइन्स क्या करता है ना, समझ में आ रहा है, इजी है। रीड बाइट बाय बाइट देगा, रीड लाइन एक सिंगल लाइन देगा, एंड रीड लाइन्स आपको सारी लाइन्स देगा, बट आपको डिलीमीटर के साथ देगा और आपको एक लिस्ट की फॉर्म में देगा, ओके। सी हियर, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ जो आपके एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो इसमें से ही मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करिए पर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट कुछ सेम टाइप के पैटर्न होते हैं जो आपको धीरे धीरे बताऊंगी मैं किस किस तरह के पैटर्न आपको प्रिपेयर करने हैं। बट देखिए इसमें रहा है काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल के अंदर से आपको कैरेक्टर्स काउंट करना है, बट आपको वाइट स्पेसेस काउंट नहीं करना है। तो आपने फाइल को ओपन किया, देन उसको रीड किया, देन आपने उसको स्पीड फंक्शन क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को अलग अलग कर देगा। जैसे आपने देखा पाइथन, तो PYTHON ऐसे अलग अलग समझेगा इसको स्पीड करने। फिर काउंट कैरेक्टर, आपने कोई भी वेरिएबल लिया है जिसमें आप काउंटिंग करके रखेंगे। फॉर I in L, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड क्या उसको काउंट करके हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ I, यानी कि आप उसकी लेंथ निकाल के यानी कि एक एक उसमें ऐड करते जाएंगे, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, इसलिए लेंथ ऑफ I। अब लेंथ ऑफ I क्या करेगा, अब जैसे ये पाइथन है, ये स्पीड फंक्शन इसको एक पूरा मान के चलेगा कि एक एक वर्ड है, ये पाइथन जो है, ये पाइथन एक वर्ड है। अब इसकी लेंथ क्या है, उसने इसको ऐड किया तो ये हो गया, जितना भी होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको ऐड करेगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसेस को काउंट नहीं करता, समझ में आया। मैंने आपको यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो आप, जैसे आपने देखा पाइथन इज अ इंटरेक्टिव लैंग्वेज, तो पाइथन हो गया, तो इज हो गया, ए हो गया, इस तरह से आपने स्पेस जो था वहाँ पे ब्रेक करके फिर उनको ऐड करता जाएगा, ठीक है। स्पीड फंक्शन आपने पढ़ा था ना, स्पीड रिप्लेस, ये सब मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था। तो आपको ये कैरेक्टर ऐड करता जाएगा और फिर आपको काउंटिंग करके आंसर देगा और क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, देखो अब इसमें क्या है, इसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, उसमें कैरेक्टर काउंट करने से वर्ड काउंट करना है। तो यहाँ पे आपको लेंथ नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपने 1, ठीक है। 1 मिनट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये वहाँ पे आपने लेंथ यूज किया था
क्योंकि आपको क्या कर रहा था वो कि स्पेस जहाँ पर भी यहाँ पे कट करके एक एक वर्ड आपको स्पीड दे रहा था, तो आपको खाली वर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो ऐड करने थे, पर आपको कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करने हैं, कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं, कितने वर्ड है वो काउंट करना है। तो स्पीड आपको सीधे कैरेक्टर्स सीधे वर्ड्स करके देगा। जैसे यहाँ पे पाइथन है तो पाइथन, फिर आपको इज, फिर ए, फिर इंटरेक्टिव, फिर लैंग्वेज, इस तरह से। तो आपको एक काउंट करना, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। फर्स्ट वर्ड है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल एक एक करके ऐड करते जाना। और वहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करना था। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आपने लेंथ ऑफ आई फंक्शन लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ आई क्या करेगा, पाइथन के अंदर 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 3 4 6 लेटर हैं तो यहाँ पे इसको 6 ऐड करेगा। फिर इसके अंदर 2 लेटर्स हैं तो फिर 2 ऐड करेगा। समझ में आ रहा है इस तरह से क्या डिफरेंस है दोनों में? बाकी सब चीजें सेम है। काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन टेक्स्ट फाइल। तो नंबर ऑफ लाइन्स के लिए क्या करेगा, देखो नंबर ऑफ लाइन्स सिंपल। अब इसने नंबर ऑफ लाइन्स के लिए क्या किया है, देखो बहुत सिंपल, इसने रीड लाइन्स फंक्शन यूज किया है, काउंट किया है और एक एक लाइन को रीड करते जा रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ऐसे प्रोग्राम जो है देखने में लगता है कि टफ है, पर आपको ऐसे प्रोग्राम ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से जो आपको प्रिपेयर करना है। देखिए काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट फाइल, सेम टेक्स्ट फाइल करना है, फिर उसको रीड किया है, फिर उसने काउंट किया, काउंट वेरिएबल लिया। अब वर्ड्स क्या होते हैं, आई को टू ए ई आई ओ यू, अगर ये कोई लेटर है तो आपको काउंट करते जाना है, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही काउंट द नंबर ऑफ इज वर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। तो इज वर्ड के लिए आपको एफ आई एन डॉट रीड, स्प्लिट किया, काउंट किया। फिर आप देखिए, ये देखिए इस वर्ड के ये रीड किया, स्प्लिट किया, फिर आपने काउंट किया और आई इक्वल टू इस। अभी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड जैसे आया है ऐसी आर आ सकता है, दे आ सकता है, देम आ सकता है, दिस आ सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, बाकी सब पूरा प्रोग्राम सेम रहता है और खाली फाइल का नाम चेंज होता है, ठीक है। ये इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको एक बार फर्स्ट फंक्शन दिमाग में बैठनी चाहिए। फिर रीड के लिए क्या करना है, राइट के लिए क्या करना है। अब देखिए राइट के लिए जो यहाँ पे है, राइट का फंक्शन भी इसमें था, बट मैं अभी इसको स्किप कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ 22 मिनट्स वीडियो। सो थैंक यू। थोड़ा सा आज इधर उधर हुआ है वीडियो में, बिकॉज ऐसा टॉपिक है जो इतना आपको समझाने में बहुत फ्लुएंट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जब तक आप एकदम न्यू है मतलब आपके लिए, तो आप जब इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करना और प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए आप लोग, अदरवाइज आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ओके।